Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is New Chapter School. Now let us start reading our first chapter, which is the Kind Dolphin. Open your books, page number 97. Unit 16. The Kind Dolphins. मैं पहले इसको थोड़ा स्लो मैं आप लोगों के साथ इसको स्लो रीडिंग करूँगी ताकि आप लोग मेरे साथ साथ इस चैप्टर की रीडिंग भी बआसानी कर सकें. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी रीडिंग में. लॉन्ग अगो ऑन अ ब्रॉड रिवर फार इन द नॉर्थ देयर लिव्ड अ फिशरमैन. एवरी डे he went fishing in his boat. He did not leave his house because his house was his boat. The boat had a flat bottom. He sailed it up and down the river. Although the river was broad, it was not deep. The fisherman was poor, but he was very kind. He shared everything with his family and friends. Sometimes he even shared what he had with the dolphins of the river. Now, the dolphins of the river were not like the dolphins in the void. These dolphins were blind, but they did not mind. They did not need eyes because the water in the river was brown and muddy. They could not have seen anything, even if they had wanted to. One day, the fisherman caught many fish in his net. There were some carp and lots of tiny shrimp too. The fisherman knew that these were the dolphins' favorite foods. He looked at his catch and he said to his wife, "There is plenty of food here for us. Let's share it with the dolphins." The fisherman threw some fish back into the river. The dolphins were happy. They had a tasty meal. Some days later, there was a storm. There was lightning and thunder. The sky became black. The river became black too. The water rose up and down, and there were great waves. The rain came down like a waterfall. The fisherman's wife and children went inside the boat, but the fisherman stayed on the deck. He had to make sure his boat was safe. Suddenly, there was a huge wave, and the boat nearly toppled over. The poor fisherman slipped and fell into the river. The fisherman's wife came to find her husband, but he was nowhere to be seen. She started to cry. "Oh dear," cried the wife. "My husband has drowned." The fisherman's wife looked out over the choppy water. She could not see him anywhere, so she went inside to be with her children. And she missed seeing the strangest sight. Two dolphins were swimming towards the boat. One had the fisherman on its back, the other was at his side. The fisherman's wife heard a loud thud, and she came out to see. And there on the deck lay her husband, all cold and wet, but safe. "Where were you?" asked the wife. "I don't know," replied the fisherman. "I slipped and hit my head on the boat. I toppled into the river." "But how did you get back into the boat?" asked the wife. "Ask the kind dolphins," he said and smiled. Nicholas Hosper. आई होप आपने मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कर ली होगी. अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करती हूँ स्टोरी में. लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है. ऑन अ ब्रॉड रिवर फार इन द नॉर्थ, यानी एक बहुत चौड़े दरिया में जो कि नॉर्थ हमारे शुमाल, बहुत फार इन द नॉर्थ, बहुत आगे शुमाल की तरफ था. देयर लिव्ड अ फिशरमैन, वहाँ एक मछेरा रहता था. एवरी डे ही वेंट फिशिंग इन हिज बोट,
रोज़ाना वो अपनी बोट में मछलियाँ पकड़ने जाया करता था। ही डिड नॉट लीव हिज हाउस बिकॉज हिज हाउस वॉज हिज बोट। वो अपना घर से कभी बाहर नहीं अपने घर को कभी नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसका घर जो था वो उसकी कश्ती थी। द बोट हैड अ फ्लैट बॉटम। उसकी कश्ती नीचे से फ्लैट थी। ही सेल्ड इट अप एंड डाउन द रिवर। वो उसे दरिया के ऊपर और नीचे ले जाया करता था। ऑल्दो द रिवर वॉज ब्रॉड इट वॉज नॉट डीप। जबकि दरिया चौड़ा था लेकिन वो इतना गहरा नहीं था। द फिशरमैन वॉज पुअर। वो मछेरा जो था वो बहुत गरीब था। बट ही वॉज वेरी काइंड। लेकिन वो बहुत रहमदिल था। ही शेयर्ड एवरीथिंग विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो अपनी सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करता था। समटाइम्स कभी कभी ही इवन शेयर्ड वॉट ही हैड विद द डॉल्फिन्स ऑफ द रिवर। वो डॉल्फिन्स जो रिवर में दरिया में पाई जाती थी उनसे भी वो अपनी चीज़ें शेयर किया करता था। नाउ द डॉल्फिन्स ऑफ द रिवर वर नॉट लाइक द अदर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड। अब वो दरिया की जो डॉल्फिन्स थी वो दुनिया की दूसरी डॉल्फिनों से मुख्तलिफ थी। दिस डॉल्फिन्स वर ब्लाइंड। वो डॉल्फिन्स नाबीना थी। बट दे डिड नॉट माइंड। लेकिन उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं था, कोई गम नहीं था। दे डिड नॉट नीड आइस बिकॉज द वाटर इन द रिवर वॉज ब्राउन एंड मडी। उनको आँखों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दरिया का पानी बहुत भूरे और मिट्टीला था। दे कुड नॉट हैव सीन एनीथिंग इवन इफ दे हैड वांटेड टू। अगर वो कुछ देखना भी चाहती तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आ सकता था। वन डे द फिशरमैन कॉट मैनी फिश इन हिज नेट। एक दिन मछेरे की जाल में बहुत सारी मछलियाँ आईं। देयर वर सम कार्प एंड लॉट्स ऑफ टाइनी श्रिम्प टू। उसमें कार्प मछली और झींगे, छोटे झींगे भी मौजूद थे। द फिशरमैन न्यू दैट दीज वर द डॉल्फिन्स फेवरेट फूड। उस मछेरे को पता था कि ये डॉल्फिन्स का पसंदीदा खाना है। ही लुक्ड एट हिज कैच एंड ही सेड टू हिज वाइफ, देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड हियर फॉर अस, लेट्स शेयर इट विद द डॉल्फिन्स। उसने अपने शिकार को देखा और उसने अपनी बीवी से कहा कि ये हमारे पास बहुत सारा खाना है यहाँ पर, क्यों ना हम इसे डॉल्फिन्स के साथ शेयर करें। द फिशरमैन थ्रू सम फिश बैक इनटू द रिवर। तो मछली ने कुछ मछलियाँ उस दरिया में वापस डाल दी। द डॉल्फिन्स वर हैप्पी, जिससे डॉल्फिन्स बहुत खुश हो गई। दे हैड अ टेस्टी मील, और उनको बहुत अच्छा मज़ेदार खाना मिला। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, देयर वॉज अ स्टॉर्म। वहाँ पर एक तूफ़ान आया। देयर वॉज लाइटनिंग एंड थंडर। गरज बरज के साथ तूफ़ान आया था। द स्काई बिकेम ब्लैक, द रिवर बिकेम ब्लैक टू। आसमान का रंग बिल्कुल काला हो गया और दरिया भी बिल्कुल काला जैसा हो गया। द वाटर रोज अप एंड डाउन एंड देयर वर ग्रेट वेव्स। पानी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनी। द रेन केम डाउन लाइक अ वाटरफॉल। और वहाँ पर बारिश ऐसे हुई जैसे वाटरफॉल में पानी गिरता है, जैसे झरने में पानी गिरता है। वाटरफॉल झरने को कहते हैं। द फिशरमैन्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वेंट इनसाइड द बोट। उस मछेरे की बीवी और बच्चे कश्ती के अंदर चले गए। बट द फिशरमैन स्टेड ऑन द डेक। लेकिन जो मछेरा था वो कश्ती के ऊपर ही मौजूद रहा। ही हैड टू मेक श्योर हिज बोट वॉज सेफ। उसको इस बात का दहानी करनी थी कि उसकी कश्ती महफूज रहे। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ ह्यूज वेव। एक बहुत बड़ी लहर आई एंड द बोट नियरली टॉपल्ड ओवर, जिससे कि कश्ती तकरीबन उलट ही गई। द पुअर फिशरमैन स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। वो बेचारा मछेरा स्लिप होके दरिया में गिर गया। द फिशरमैन्स वाइफ केम टू फाइंड हर हस्बैंड। उस मछेरे की बीवी उसको अपने शौहर को ढूंढने के लिए आई। बट ही वॉज नो वेयर टू बी सीन। लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आया। शी स्टार्टेड टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। ओ डियर क्राइड द वाइफ, माई हस्बैंड हैज़ ड्रॉन। ओ डियर, मेरे शौहर डूब गए हैं, उसकी बीवी ने बोला। द फिशरमैन्स वाइफ लुक्ड आउट ओवर द चॉपी वाटर। उसकी बीवी ने उस मिटीले पानी के ऊपर देखा। शी कुड नॉट सी हिम एनीवेयर। लेकिन उसे वो कहीं पे भी नज़र नहीं आया। सो शी वेंट इनसाइड टू बी विद हर चिल्ड्रन। तो वो कश्ती के अंदर चली गई ताकि अपने बच्चों के साथ रहे। एंड शी मिस सीइंग द स्ट्रेंजेस्ट साइट। और उसने इस तरह बहुत एक हैरान कुन मंजर देखने से महरूम रही। 2 डॉल्फिन्स वर स्विमिंग टुवर्ड्स द बोट। अब वो मंजर क्या था इसमें बता रहे हैं कि 2 डॉल्फिन्स कश्ती की तरफ आ रही थी। वन हैड द फिशरमैन ऑन इट्स बैक। एक डॉल्फिन के ऊपर मछेरा बैठा हुआ था और दूसरी डॉल्फिन उसके बराबर थी,
वो ऐसे क्यों था कि डॉल्फिन्स के ऊपर से वो फिसल रहा था, दूसरी डॉल्फिन्स को सहारा देती हुई कश्ती की तरफ लेके आ रही थी। द फिशरमैन्स वाइफ हर्ड अ लाउड थर्ड, उसकी बीवी को एक बहुत ज़ोर से धड़ करके आवाज़ आई। एंड शी केम आउट टू सी, और वो बाहर आके उसने देखा कि किस चीज़ की आवाज़ है। एंड देयर ऑन द डेक ले हर हस्बैंड ऑल कोल्ड एंड वेट बट सेफ, और कश्ती के ऊपर वहाँ उसका शौहर था, उसको ठंड लग रही थी और वो गीला था लेकिन वो महफूज था। वेयर वर यू आस्क्ड द वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा तुम कहाँ थे? आई डोंट नो रिप्लाइड द फिशरमैन, आई स्लिप एंड हिट माई हेड ऑन द बोट, आई टॉपल्ड इनटू द रिवर। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं स्लिप हो गया, मेरे सर में चोट लगी और मैं रिवर के अंदर गिर गया। बट हाउ डिड यू गेट बैक इन द बोट, लेकिन तुम कश्ती में वापस कैसे आए? उसकी बीवी ने पूछा। आस्क्ड द काइंड डॉल्फिन, ही सैड एंड स्माइल, और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि रहमदिल डॉल्फिन से ये आप पूछिए। ये आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको इसकी वर्किंग स्टार्ट करवा देंगे कि आपको किस तरह वर्किंग करनी है। घर में आप लोग इसके ज़रूर 2 से 3 दफ़ा रीड करने की खुद से कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे होम एंड स्टे सेफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।